نئے مالی سال کا 17,500 ارب روپے کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ متوقع۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 5 سے 7.5% تک اضافے کی تجویز۔ بجٹ میں مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب اور ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے ہے۔ مجموعی اخراجات کا حجم 18,870 ارب روپے۔ قرض کی ادائیگی پر 6,200 ارب، قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بجٹ خسارے کا ہدف بھی یہی مقرر کیا گیا ہے۔ نان ٹیکس آمدن 2,584 ارب روپے، صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے۔ وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ اور صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ڈیجیٹل معیشت اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے 16 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم مختص کیے جانے کا امکان۔ بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے قبل بجٹ کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب۔ 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ فری لانسرز کی بیرون ملک آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی اضافے کی تجویز۔ سپلائی چین پر 4% اضافی سیلز ٹیکس ختم۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی مسترد۔ وفاقی بجٹ میں بجلی سمیت دیگر شعبوں کو سبسڈی کی رقم بھی 1400 ارب روپے کے لگ بھگ رکھنے کی تجویز۔ ایف بی آر کی ٹیکس آمدن 14,142 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ نان ٹیکس آمدن کا تخمینہ 4,851 ارب روپے سے کم کر کے 3,500 ارب رکھنے کی تجویز۔ سود کی ادائیگیوں کا بوجھ 9,775 ارب روپے سے کم کر کے 8,110 روپے کرنے کی تجویز۔ درآمدی مرحلے میں ٹیرف میں رد و بدل کی تجویز سے 150 سے 200 ارب روپے کی کمی متوقع۔ آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا ہدف 7% کے لگ بھگ رہنے کا تخمینہ۔ 850 سی سی کی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں 5.5% اضافے کا امکان۔ 3500 سے زائد امپورٹڈ اشیاء۔ وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ پہلے سے جاری 22 منصوبے آئندہ مالی سال کے لیے بھی ترقیاتی پروگرام کا حصہ۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کے لیے آئندہ مالی سال 4 ارب مختص۔ ہائیڈرو میٹ منصوبے کی جدت کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 89 کروڑ روپے مختص۔ بجٹ میں 3 اور 5 مرلہ گھروں کے لیے شرح سود پر سبسڈی کی تجویز۔ 10 سے 12 سال کی ادائیگی کی مدت پر مشتمل سستا پیکج ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملک میں 1 کروڑ 40 لاکھ رہائشی یونٹس کی کمی ہے۔ 3 اور 5 مرلہ کے لیے سود کی سبسڈی کا ممکنہ خرچ سالانہ 50 سے 70 ارب روپے تک ہوگا۔ حالیہ مردم شماری کے مطابق ملک میں 30 ملین کچا کا رہائشی یونٹس موجود ہیں۔ بجٹ میں وزارت ہاؤسنگ کے لیے کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے پہلے سے جاری 21 منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے مختص۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعظم اسٹاف کالونی کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کے لیے 5.5 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ آئندہ بجٹ میں امیروں کے لیے آسانیوں کا امکان ہے۔ بڑی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاریاں۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیز بدستور سپر ٹیکس سے مستثنی رہیں گی۔ سالانہ 20 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیز کا سپر ٹیکس 1% سے کم ہو کر 0.5% ہو سکتا ہے۔ 25 کروڑ تک کا منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس 2 کے بجائے 1.5% ہونے کا امکان۔ سالانہ 30 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس 3%۔ سالانہ 30 کروڑ سے زائد منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس بدستور 4% رہنے کی توقع۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی نہ ہونے کا امکان۔ پاکستان کی ترقی کی شرح 2.7%۔ معیشت کا حجم 411 ارب ڈالرز ہو گیا۔ رواں مالی سال کی اقتصادی رپورٹ جاری۔ صنعتی ترقی میں اضافہ، زرعی شعبہ نظر انداز۔ زرعی ترقی کی شرح 1% سے کم۔ بڑی فصلوں کی پیداوار میں 13% کمی۔ گندم، چاول، کپاس، گنے اور مکئی کی پیداوار میں کمی۔ صنعتی ترقی کی شرح 4% سے زائد۔
हुकूमत का महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर आने का दावा। आटा, चावल, अंडे सस्ते, गोश्त, दूध और तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। आटे का 20 किलो का थैला एक साल में 768 रुपए सस्ता, कीमत 2410 रुपए से 1642 रुपए हो गई। आटे की कीमत में तकरीबन 32% कमी हुई। बासमती टोटा चावल की कीमत एक साल में फी किलो 23 रुपए कम हुई। कीमत 224 रुपए फी किलो से कम होकर 201 रुपए हो गई। चावल की कीमत में 10% कमी हुई। बड़े गोश्त की कीमत में 181 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। बड़ा गोश्त 902 रुपए फी किलो से 1083 रुपए का हो गया। छोटे गोश्त की कीमत में एक साल के दौरान 171 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। मटन की कीमत 1834 रुपए से बढ़कर 2005 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए फी किलो सस्ता, इसकी कीमत 474 रुपए से 459 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 24 रुपए फी दर्जन सस्ते हुए। अंडों की कीमत 262 रुपए से 238 रुपए फी दर्जन हो गई। ताज़ा दूध 13 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ताज़ा दूध की कीमत 185 रुपए से 198 रुपए फी किलो हो गई। दूध की कीमत में 7% इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल के 5 लीटर डब्बे की कीमत में 281 रुपए इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमत में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि जितने अखराजात में हुकूमत ने कमी की, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। प्राइमरी सरप्लस के बढ़ने की वजह अखराजात में कमी है। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स टू GDP की शरह को 14% तक लेकर जाना है। आइंदा साल में कर्ज मैनेजमेंट पर हमारा फोकस होगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। बैंकों को सख्ती से कहा गया है कि निजी शोबे को कर्ज दें। सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 1000 अरब रुपए से ज्यादा है। इस नुकसान को कम करने के लिए निजकारी कमीशन को 24 सरकारी इदारों की फहरिस्त दी है। 43 वजारतें और 400 मुल्हिका महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है। पावर सेक्टर में वसूली की शरह बेहतर रही है। जहां जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। एनर्जी शोबे में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए बैंक से 1272 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहदा किया है। तालीम के शोबे के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम। पाकिस्तान की खवानदगी की शरह 60.7% रही। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में खवानदगी की शरह देही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा रही। पंजाब में खवानदगी की शरह सबसे ज़्यादा 64%, सिंध शरह 57.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 51% और बलूचिस्तान में खवानदगी की शरह 42% रही। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। 1000 शीरखार बच्चों में से हर साल 50 फौत हो जाते हैं। मुल्क में औसत उम्र 67.5 साल है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर है। डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़ायद इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000 हो गई है। नर्सेज 1,38,000। डेंटिस्ट की तादाद 39,088 तक पहुँच गई। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1696 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5,434 हैं। आइंदा माली साल के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवा माली साल के निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपए की कटौती। बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मंसूबा शामिल नहीं। इस्लामाबाद के टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब। कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग पर 1.97 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का पास्को का इदारा ख़त्म करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था। वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया कि बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। साथ ही दावा किया है कि जिन बड़ी फसलों की हुकूमत ने इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया, इनकी पैदावार में बेहतरी आई है। अगर ज़राअत तरक्की करती तो मजमूई तरक्की की शरह बेहतर होती। अहम फैसलों में हम ग्रोथ हुई है और हम इन पर खुसूसी तवज्जो भी दे रहे हैं। मुल्क में फूड स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिए हैं। फूड स्टोरेज से आड़तियों का किरदार ख़त्म होगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं हुई। सूबे 3000 अरब से ज़ायद और विफाक 1000 अरब रुपए तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। मुल्क का मजमूई तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। रवा माली साल पाकिस्तान से लाखों अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क काम करने के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा पंजाब से है। पंजाब से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है। कबायली इलाकों से 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। सिंध से 60,424 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की तादाद
तादाद 5,668 है। एक साल में वफाकी दारुल हुकूमत से 8,621 वर्कर्स बैरून मुल्क गए। आज़ाद कश्मीर से बैरून मुल्क जाने वाली लेबर की तादाद 29,551 है। शुमाली इलाकाजात से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद 1692 है। पाकिस्तान को कुदरती आफात के बायस संगीन खतरात का सामना। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब के गुज़िश्ता 44 साल में पाकिस्तान को 36 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 44 साल में मुल्क में 109 छोटे बड़े सैलाब आए। गुज़िश्ता 44 साल में आने वाले 30 ज़लज़लों में मुल्क को 5 अरब 34 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ। मौसमियाती शिद्दत से 2,741 अफराद की अमवात और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 44 साल आने वाले 30 बड़े तूफ़ानों से 1 अरब 71 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे और मिट्टी के तोदे गिरने से 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा सैलाब 2015 से 2019 के दरमियान आए। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख वकास अकरम और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 32 लाख अफराद पिछले सालों में मुल्क छोड़कर चले गए। बानी पीटीआई की हुकूमत में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। लोग अफरात ज़र, क़ुव्वत ख़रीद और नौकरियां पूछते हैं। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के निचली सतह पर आ चुकी है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से ज़ायद होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी रही। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बंद हो जाता है तो सीमेंट, रेत और टाइलें नहीं बिकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एहसन इकबाल मुकम्मल फेल हैं ऐसा कहा। 20% फंड इस्तेमाल हुआ, बाकी कहाँ गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत ख़्वाना तरीके से पेश किया है और अवाम माशी तौर पर यतीम हो गए हैं। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के इंचार्ज चौधरी मंजूर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सनती मजदूरों को इलाज की सहूलियात दें। डेथ ग्रांट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख करें। मैरिज ग्रांट को 4 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। EVBI की पेंशन इस वक्त 10,000 के करीब है। इसमें 100% इजाफा किया जाए। निजकारी की पॉलिसी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। अगर ये मुतालिबात नहीं माने जाते तो हम अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान के सदर इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। ज़राअत दुश्मनी पॉलिसीज़ की वजह से ग्रोथ 0.56 है। इस बार गंदम की पैदावार में 39 लाख टन कमी हुई है, जबकि 34% कपास की पैदावार में कमी आई है। आम की पैदावार इस साल सिर्फ 25% है। काश्तकारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। यूरिया महंगा मिल रहा है। किसान को बस नाम की सब्सिडी मिल रही है। किसान के बिजली के बिल पर टैक्स है। सब्जी का काश्तकार मर चुका है। ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल 2025 पेश करेंगे। सेनेट मालियाती बिल पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भेजेगा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, नारकोटिक सब्सिडीज़ एक्ट और कीमतों पर कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कानून पर तरमीम पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में कहा कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहें। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और ख़ुद कफ़ील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज का कहना है कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें। ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स दे और करोड़ों के आमदन वाला टैक्स ना दे। ये कैसे मुमकिन है। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी माइंस एंड मिनरल्स और दीगर महकमों को रेवेन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई। 57 सूबाई महकमा और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत का 13 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 8 अरब रुपए, जंगलात के लिए 4 अरब रुपए और सेहत का बजट 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। सनत का 4 अरब, आपाशी का 96 अरब, बल्दियात का
13 अरब, मनसूबा बंदी का 16 अरब रुपए बजट मुख्तस किया गया। मंजूर की गई बजट तजावीज़ के मुताबिक सर्विसेज का 14 अरब, ट्रांसपोर्ट का 57 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज का 1 खरब 39 अरब रुपए, जबकि महकमा दाखिला का बजट 11 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। टैक्स और रेवेन्यू को बढ़ाएंगे और टैक्स और रेवेन्यू को बढ़ा के इंशाल्लाह अपने सूबे को हमने अपने पाँव पे खड़ा करके इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास 150 अरब हमने अपने अकाउंट में रखा हुआ है सिर्फ कर्जा उतारने के लिए। अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमारे पहले दिन से यही हमारा एक एजेंडा है और हमारा एक विजन है इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल किया जाए। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स फ्री बजट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, कहते हैं कि मकरूज मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकता। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में एजुकेशन एमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिलासूद कर्जे देंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। मुज़ाकरात में KPK को भी शामिल किया जाए। बानी की रिहाई के लिए पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। अमीरों के लिए आसानियां ही आसानियां। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक अमीरों के लिए इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब रुपए से बढ़ गई है। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक पहुंच गई है। जीरो रेटेड शोबे को 683 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स छूट दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पर टैक्स छूट 299 अरब से बढ़ गई। मुल्क में बसने वाले ख्वाजा सरा शरह खवानदगी में नुमाया मकाम हासिल करने लगे। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक ख्वाजा सराओं में शरह खवानदगी 40.15% है। शहरी इलाकों में ख्वाजा सराओं में शरह खवानदगी 42.4% है। देही इलाकों में बसने वाले 32.94% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 44.67% पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं। पंजाब में ख्वाजा सराओं के पढ़ने लिखने के होने की शरह 41.5% है। सिंध में ख्वाजा सराओं में पढ़े लिखे होने की शरह 37.5% है। बलूचिस्तान में 25% ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं। सूरज कहर ढाने लगा, झुलसा देने वाली गर्मी का राज। शहरी बेहाल। डीजी खान, जैकबाबाद, नूरपुर थल, भक्कर में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा और सिबी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। बहावलनगर, बनू, दादू, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, झंग, कसूर में पारा 47 डिग्री तक रिकॉर्ड। शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। आइंदा 3 रोज़ तक मुल्क के बालाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। आइंदा चंद रोज़ तक बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं।